Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDI practice series. So first pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start understanding this particular set. This says Star Fisheries Private Limited is involved in fish farming. They have many ponds in which breeding, rearing and transplantation of fish is done for commercial purposes. The following table shows data related to rohu fish. They catch and sell rohu fish every day to local retailers where each fish weighs at least 3 kg. ठीक है. The following table shows the following data for the period 26 March 23 to 15th April 23. 26 March से लेके 15th April तक का डेटा अपने पास given है. We have three conditions. This says three following statements. This says the number of rohu fishes caught for selling on each day in that period. So इस particular table में क्या है? The number of rohu fishes caught for selling on each day in that period. तो इतने इतने fish हमने क्या कर रखे हैं? Catch कर रखे हैं. The second is the average number of fishes caught in the last 7 days including the date of trading. तो ये तो हमने individual days पे number of fishes catch कर रखे हैं. The second point says the average number of fishes is also given. तो 7 day आपका actually में average दिया हुआ है. 7 day average starting from 1st April. तो obviously यहीं से start होगा because 7 days check के पहली बार 1st April को ही complete होता है. Right? So a 7 day average is given from 1st of April. Obviously some values are missing. Then it is known that the values of catch per day, this column, and 7 day average, ये 7 day वाला का second column, are positive integral multiples of 10. तो जैसे remaining जो हमारी values है वो क्या होनी चाहिए, वो 10 का multiple होगा. This is already known. Already जो given है वो तो 10 का multiple अपने को दिख ही रहा है. Fine, some data is missing in the table. Further, it is known that the number of rohu fishes caught on 31st of March. So 31st of March is this value. This is more than that of 26th March but less than that of 28th March. तो ये जो आपका 31st March है, this has to be greater than 130. That is the number of fishes caught on 26th of March, and this has to be less than the number of fishes caught on 28th of March. So 130 से 210 के बीच का वैल्यू आना चाहिए. Also a multiple of 10, integral multiple of 10. ये तो अपने को स्टार्टिंग से बोल दिया है उसने. Right. The next point is the lowest value of 7 day average in the month of April up to 15th occurred on 9th of April. तो ये जो 7 day average है आपका for the month of April, it is saying lowest value occurred on 9th of April. यहाँ पे आपका lowest value जा रहा है and that remains the same till 11th of April. तो 9, 10th, 11 ये तीनों day आपका जो average है वो least भी होगा April का, also it has to be the same, वो same भी होना है. Right, and on the basis of this we have to solve the following 4 problems. Now सबसे पहले कुछ जो यहाँ पे values missing है उनको figure out करने का try करते हैं. तो कैसे figure out होगा? सबसे पहले ये let's say यहाँ पे जो missing values है, let's say this is A, this is B and this is C. Now how do I figure out what is A, B, C? Because ये जो A है ना, यही आपका actually में पहला problem भी है. How many rohu fishes were caught on 29th of March? तो मे भी किसी तरीके से आपका ये A फिगर आउट होगा. और कैसे फिगर आउट होगा? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस 170 से. मे भी राइट, इस 170 से स्टार्ट करने का लॉजिक ये है कि ये जो 170 है ये फर्स्ट 7 डेज का आपका, दैट इज 26 से लेके फर्स्ट तक का आपका एवरेज होना चाहिए. नाउ करेंटली अगर मैं इन सबको एड अप करूँ तो कितना आएगा? लेट्स ऐड देम सेपरेटली. सो 100, 100, 200, 400, 400 एंड 100, दैट इज 500. 500 के बाद 90, 10 is again 100, that is total 600. 630, 630 plus 80, this becomes 710. So ये बन जाता है आपका 710 plus A plus B plus C. Right now ये जो टोटल है इस एवरेज से भी निकल जाएगा, बिकॉज एवरेज क्या होता है? टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. सो 170 इज द एवरेज फॉर 7 days. तो 170 into 7, this should give me the same value, that is 710 plus A plus B plus C. Now what is 17 into 7? This is 70 plus 49, that is 1190. तो अब इससे हम ना एक्चुअली में क्या आ जाएगा? A plus B plus C का सम. तो ये कितना हो जाएगा? 1190 minus 710, this becomes 480. तो A plus B plus C का सम निकल गया, that is 480. नाउ A निकालने के लिए अब आपका जो ट्रिक है वो क्या है? आप यहाँ से स्टार्ट करो, दैट इज 30th March. सो दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7.
इन 7 डेज का एक्चुअली में आपको सम पता है थ्रू दिस 150, राइट, बिकॉज एवरेज आपका 150 है. सो 150 into 7 that becomes 1050. This should be the sum of these days starting from this 30th March till this point 5th April. तो इनको भी अगर हम एडअप कर लें तो इससे एक्चुअली में क्या निकल आएगा b प्लस सी. एंड बिकॉज a प्लस बी प्लस सी है तो हम b प्लस सी को इसमें प्लग इन कर देंगे और क्या निकल आएगा अपना a, राइट. सो ये अपना एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया. नाउ सबसे पहले वैल्यूज ऐड करते हैं. सो 100 100 100 200, सो 2 3 4 5 500 ये हो गया. Then 80 30 is 110, 110 plus 30 that is 140, 140 plus 80 220. So पहले का 500 और 220 that is 720. So 720 plus इसमें कौन सा वेरिएबल बचे थे b और c. तो इससे क्या होने वाला अपना ये b plus c का वैल्यू आ जाएगा. Now this becomes 330. So b plus c becomes 330. अब इसी चीज़ को यूज़ करके आप एक्चुअली में ए फिगर आउट कर सकते हो एंड दैट विल बी द आंसर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम. सो 480 माइनस बी प्लस सी दैट इज 330. तो इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट वुड बी इक्वल टू 150. तो ये आ गया अपना 150 और यही पहला भी क्वेश्चन था. हाउ मेनी रोहू फिशेस वर कॉट ऑन 29th of March. ये आंसर इज 150 नाउ ये हो गया अपना पहला प्रॉब्लम सॉल्व. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 7-day एवरेज ऑन 6th of April. यहाँ पे आपका जो एवरेज है इसकी वैल्यू निकालनी है. नाउ इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप ये नोटिस करो ये जो एवरेज होगा वो किसका एवरेज होगा. यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 7 डेज की काउंटिंग करो. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. नाउ इन सब में आपको सारी वैल्यूज तो पता है एक्सेप्ट फॉर दिस सी. तो ये एवरेज निकालने के लिए आपको सी का कुछ ना कुछ वैल्यू पता होना चाहिए. और सी का आप याद करो सी का जो एक कंडीशन था. लेट्स गो बैक टू दिस फर्स्ट ए कंडीशन. द नंबर ऑफ रोहू फिशेस कॉट ऑन 31st of March. ये सी इसका जो रेंज है वो क्या दिया था. दिस वाज मोर देन 26. तो 130 से ऊपर होना चाहिए एंड दिस हैज टू बी लेस दैन 28th of March वैल्यू. 210 से नीचे होना चाहिए. तो अब पॉइंट ये है कि ये सारी वैल्यूज जब हम ऐड करके एवरेज निकालेंगे दैट इज डिवाइडेड बाय 7 तो वो क्या आना चाहिए आपका एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 10 आना चाहिए, राइट. तो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस. नाउ इस रेंज में वैल्यूज हम स्टार्ट करेंगे ना तो 130 से बड़ा होना चाहिए वो भी 10 का मल्टीपल होना चाहिए. तो 140 150 160 170 180 190 200 यहीं तक आपका वैल्यूज निकल के आएगा. नाउ सबसे पहले क्या करते हैं इन सबको ऐड करते हैं रिमेनिंग वैल्यूज. तो 230 प्लस 100 तो 2 + 2 4 4 5 6 7 700 ये हो गया. उसके बाद रिमेनिंग वैल्यूज कितनी हो गई 80 30 20. सो दिस इज 130 प्लस 10 140 प्लस 80 220 प्लस 30 250. तो 250 ऐड कर दिया दिस बिकम्स 950. नाउ 950 प्लस अब इस रेंज में देखो 130 से स्टार्ट करके 210 तक कुछ भी जा सकता है. तो अगर मैं जैसे लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बोलूँ आई एम नॉट सेइंग कि 130 होगा बट इस रेंज में जैसे अगर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ तो 130 से जस्ट क्रॉस कर 140 हो सकता है. मैक्सिमम कितना हो सकता है यही सम 950 प्लस 210 से कम जाएगा दैट इज 200 एग्जैक्टली. इन दोनों केसेस का एडिशन कर लो तो वो आपका टोटल सम की रेंज पता चल जाएगी. सो ये कितना हो जाएगा 1090 से लेके 9 to 1150, राइट. नाउ इस रेंज में 1090 से 1150 में बस आपको ये फिगर आउट करना है कब ये नंबर एग्जैक्टली 7 से डिवाइड होता है. सो किसी भी एक नंबर को ट्राई कर लो 1090 अप्रॉक्सीमेटली अगर हम डिवाइड करें तो इससे आइडिया लग जाएगा कि आपका 7 से जाके वो कब डिवाइड होने वाला है, राइट. लेट्स डिवाइड दिस बाय 7. तो 7 से डिवाइड करेंगे 14 7 98 15 7 इज 105. तो 15 7 105 बच गया आपका कितना 40. तो 40 आपका ऑब्वियसली डिविजिबल नहीं है, राइट. तो और ऊपर जाना पड़ेगा. 1090 नहीं हुआ डिवाइड 10 और ऐड होगा तो 1100. इज दिस डिविजिबल बाय 7? आई डोंट थिंक सो. 717 40 75 35 अगेन डिवाइड नहीं हुआ. लेट्स चेक फॉर 1110 717 41 75 35 ये भी डिवाइड नहीं हुआ. लेट्स चेक फॉर 1120 तो 717 42 एंड 76 is 42. तो ये आपका डिवाइड हो जा रहा है. तो 717 160.
इसके बाद आपका अगेन ये डिवाइड नहीं होगा बिकॉज 1130 पे भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 1140 पे भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और 1150 पे भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, राइट। 1120 पे डिवाइड नहीं हुआ, 1130 पे भी नहीं हुआ। ओके, तो अकेला यही वैल्यू है, दैट इज 160। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका रिक्वायर्ड एवरेज है दिस इज 160, ठीक है। ऑल्सो आप यहाँ पे ये सी भी बता सकते हो बिकॉज कितने ऐड करने पे डिवाइड हो जा रहेगा, दिस इज 1120, राइट। सो 1120 बनाने का मतलब 950 में हमने कितना ऐड किया है, बिकॉज 50 प्लस 120 प्लस 50 दैट इज 170। तो एक्चुअली में ये जो आपका नंबर है सी, दिस इज 170, ठीक है। एंड यूजिंग दिस वी कैन ऑल्सो फिगर आउट दिस बी, राइट, क्योंकि बी प्लस सी का सम आपको 330 पता था, ये 170 है, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी 160, राइट। तो ये अपना सेकंड पार्ट फिगर आउट हो गया, एंड दिस इज व्हाट इज द आंसर टू द सेकंड प्रॉब्लम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 7 डे एवरेज ऑन 6th of April? दिस हैज टू बी 160. Now, moving on to the third problem. This says, what is the lowest value of catch per day in the month of April? ये catch per day की least value in the month of April. Now, for that we have to figure out these values. अब ये कैसे figure out करें? तो याद करो एक condition ये दिया था ना, the lowest value of 7 day average was least in the month of April on 9th of April. तो ये आपका लीस्ट वैल्यू है, एंड इट रिमेन सेम ओवर द नेक्स्ट 2 days, 11 तक सब सेम है। दैट मीन्स ये तीनों जगह जो भी आपका एवरेज है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स कॉल दिस एक्स, तो ये तीनों जगह आपका एक्स ही आना है। नाउ हाउ डू आई फिगर आउट दिस वैल्यू ऑफ एक्स? इसको फिगर आउट करने के लिए जैसे स्टार्ट करो थोड़ा सा लॉजिक से, बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, जल्दी करना है। तो थोड़ा नोटिस करो, जैसे ये जो एक्स है इसका एवरेज बनाने के लिए कौन से 7 days यूज होंगे? 9 से स्टार्ट होगा, तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1 2 3 4 5 6 और एक पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज 3। तो 120 से लेके ये 3rd of April से स्टार्ट करके 9th of April तक यहाँ जो भी वैल्यू रही होगी, राइट, इन सब का एवरेज जो निकाला होगा वो आपका एक्स आया होगा। अब पॉइंट ये है कि जब हम एक आगे शिफ्ट करेंगे दैट इज 10th April तक जाएंगे, तब भी एवरेज आपका चेंज नहीं हो रहा है। बिकॉज ये चेंज नहीं हो रहा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सम चेंज नहीं हो रहा होगा। नाउ अगर मैं 3rd से लेके 9th तक का एवरेज निकालूँ, या फिर मैं 4th से लेके 10th तक का एवरेज निकालूँ, 7 days यहाँ पे भी है 7 days यहाँ पे भी है, बट दोनों केस में आपका एवरेज चेंज हो नहीं रहा। अच्छा, इन दोनों केस में 4th April से लेके 9th April तक का तो दोनों में एडिशन कॉमन रहेगा ना। उसके अलावा जो चेंजेस हुए वो ये हुआ कि इसमें हमने जो सेकेंड वाला केस ये एक्स बनाना है, 10th of April का एवरेज एक्स, इसको बनाने के लिए हमने यहाँ से 120 को स्किप करा होगा और यहाँ पे हमने 10th April वाला नंबर ऐड किया होगा। अब बिकॉज एवरेज चेंज नहीं होना है तो मतलब हमने जितना रिमूव किया होगा उतना ही तो ऐड किया होगा। तो मैं सिंपली यहाँ से लॉजिकल तरीके से बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अगर 120 है ना, तो यहाँ पे 10th April को भी क्या रहा होगा, 120, राइट। एंड इसी सेम लॉजिक से बिकॉज नेक्स्ट डे पे भी आपका एवरेज चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हमने 210 स्किप मारा होगा और ये 11th April वाली वैल्यू उठाई होगी, तो ये 210 और ये 11th वाली वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी आपका एवरेज भी सेम रहेगा। दैट मीन्स मैं सिंपली बोल सकता हूँ यहाँ पे 11th April को टोटल नंबर ऑफ कैचेस, फिशेस कैचेस वुड बी 210। नाउ बिकॉज अब इन दोनों की वैल्यू आ गई है तो अब हम वापस जा सकते हैं इस 9th April का वैल्यू निकालने में। कैसे? तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, ये जो आपका लास्ट में 15th April को एवरेज 160 है, ये किसका होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इन 7 days का। तो अगेन हम सेम काम से 160 इंटू 7 कर लेते हैं, 160 इंटू 7 वुड बी 70 एंड 42, दैट इज 1120। अब ये 1120 किसका सम होगा, इन 7 days का। तो इनमें से हम ये 6 days को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपना 9th of April की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स ऐड देम, तो 2 3 4 5 6 7 8 800 ये हो गया। उसके बाद 2 3 30 30 50 इज 80 80 30 80 30 is 110 110 and 70 180 180 and 80 260। सो ये ऐड करके हमने सब्ट्रैक्ट करना है 1120 में से, सो दिस बिकम्स 1060। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे द रिजल्ट वुड बी 60। दैट मीन्स 9th of April को नंबर ऑफ फिशेस caught would have been 60, and through this we have figured out all the required values.
नाउ थर्ड क्वेश्चन यही था, व्हाट इज द लोएस्ट नंबर ऑफ कैचेस पर डे इन द मंथ ऑफ अप्रैल. सो लीस्ट वैल्यू आपको दिखी क्या रही है, 60 अप्रैल के मंथ में. दैट मीन्स दिस थर्ड आंसर इज 60. And let's go to the final problem. How many days in the month of April up to 15 the catch per day is less than the average catch of the last 3 days of the month of March. Now March के last 3 days में यही तो थे A, B and C. तो इनका एवरेज कितना होगा, इन तीनों का सम वर्स 480. 480 बाई 3 दैट इज 160. तो अप्रैल के मंथ में बस आपको ये काउंट करना है कि 180 से कितने डेज में कितने डेज लेस रहा. तो 180 से नीचे चेक करना स्टार्ट करते हैं. तो 1 2 3 4 5 सॉरी 160 से नीचे, राइट. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 8 values. So a total of 8 values are there in the month of April, which has the lesser number as compared to the average of the last 3 days of March, that is 160. Right, so this is how we solve this particular set. If you have again any doubts in this particular set, you may just put that in the comments. Thank you.